प्रिपरेशन किया, और जब मेरा रैंक, मतलब मुझे रैंक दिखा और मेरा आईआईटी बॉम्बे में हुआ, तो अब मुझे फील होता है कि लाइक एवरीवन, लाइक यू आर प्राउड फॉर, लाइक मेरी फैमिली सबको अभी जाके बोलती है मेरी बच्ची आईआईटी बॉम्बे में जो भी चीजें है। तो मैंने पहले मंथली किए कि मेरे इतने सब्जेक्ट्स हैं, मंथली जो भी बनते थे इतने सब्जेक्ट्स में मंथली, और फिर मंथली को भी मैंने वीक वाइज और डे वाइज ये किया था। And I want to understand from your preparation journey कि what was the relevance of notes for you? कितना ओके, importance रहा notes का तुम्हारे लिए? तो मेरी पहले से ही ऐसी, मतलब पढ़ाई करते हुए मेरी आदत है कि आई नीड टू मेक नोट्स एंड आई हैव गिवन 100% टू स्ट्रक्चर। मैंने सर के क्लासेस भी किए, उसके बाद में जो भी कुछ जैसे एनिमेटेड वीडियोस रहते थे जिससे मैं वो कॉन्सेप्ट समझ पाती थी, वो भी किए हैं। तो वेन एवर यू आर फीलिंग वेरी एंजाइटी और वेरी स्ट्रेस, दैट टाइम ओनली फोकस ऑन योर गोल्स। We can start? Are you ready? या On the other side of the table, now you are our guest. So, hi Ruchika, welcome. Very, very good evening. And everyone, this is for everyone. Ruchika is one of our students from the first batch. So she joined back in 2023 and one of the star students of Eri Academy. And why, it's very special for me also. So the first year, there were few students who were, from there in the first class also, and Ruchika was from that first class. So first year, first class of Harry Academy, and you were there, and truly, a very special, and there was a different kind of bond that we shared till today also, and it was very amazing, very good journey. So when students also mentioned that we can call her, and I was like, yeah, why not? And let's do this. And this would be really great. And Ruchika, welcome to this थैंक यू। Sunday interaction session, what we used to call chit chat session in our first year. Now it has become Sunday interaction session. I clearly remember this chit chat session name also came from one of our class discussion only. I asked students from that batch ki kya naam rakhe iska, and finally we came on to this chit chat session. Or yeah, so now there are a lot of students, right? And they are very confused how you used to be sometime back in your journey. And so for that discussion only, right? We are going to take this complete how was your gate journey and what you did, or is any tip or tricks for these students. So I have my complete questionnaire ready for you, right? So guys, how the flow will go is we first I'll ask few questions from Ruchika. I have prepared my questions. I have my questions with me, and post that it will be open for all the students to ask their questions if they have any that is not covered in the session. So that's how we will proceed into this. Okay? Works for everyone? Everyone give me a quick yes, yes, yes. Are you all excited for this? I am very excited for this. Yes. आई एम काइंड नर्वस बट आई ट्राई कि मैं सबके आंसर्स दे पाऊँ। Don't be nervous यार ये तो just basic discussion we are having जैसे हम क्लास में करते थे. Great, awesome. So first we'll start Ruchika. Now finally we'll start and first why don't you start with your basic introduction or any brief introduction that you want other students to know about you. Okay, so myself Ruchika Ramteke. I am from Amravati, Maharashtra, and now currently I am doing MTech in IIT Bombay. My stream is JNR. So if I wanted to give my introduction as a student, so I was very overthinking student. I was always in anxiety. Yeah, this is my basic, I think. I think lot of students can relate to this here because currently I guess most of them are going through this particular situation, and that was surprising for me because it's only July I guess, and Yeah. the way they are stressed, it feels like it's November. But what I am trying to tell them is relax. अभी अभी 2 महीने बाद अभी टाइम दो, तब देखो स्ट्रेस लेवल क्या होने वाला है, right? So like my first question to you, first of all, I would take you back to your journey 2-3 years back, and first question, when you
thought of preparing for GATE, right? And why actually you started preparing for GATE? Because what I remember is you have done your bachelor's, and after that, like I guess you have given some gap into the preparation. Not it was not continuous preparation, right? So there was some gap of like 1-2 years Yeah. that you gave. And so why this thought of GATE? Like why you wanted to attempt for GATE? So ma'am, I believe everyone is okay with Hindi also, Hindi and Yeah. You English. can go ahead with Hindi, English. When I was from COVID batch, तो it was like कि मुझे मेरे होम टाउन पे करना था जो भी है प्रैक्टिस. So I started as a junior architect and I was getting salary only of 7.5K. And I tried to do job for 1 year also, but my salary was same 9K. So I was very worried कि कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, क्या कर सकते हैं. एंड माई मतलब मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है इट इज लाइक गवर्नमेंट. सो फ्रॉम वेरी स्टार्ट आई वाज वांटेड टू गो इनटू द गवर्नमेंट. बट द थिंग इज दैट कि मोस्टली एम प्लान प्रेफर करते हैं, तो मेरे पास एम प्लान नहीं था. सो मुझे तो एक बात पता थी कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, तो मैंने वही मोमेंट पे मेरी मतलब बहुत बड़ा रिस्क लिया था. आई लिफ्ट माई जॉब, बट आगे क्या करना है वो पता नहीं था. Meanwhile, there was MPSC exam was there line up, so I was preparing for that exam also. And then I was like simultaneously like I was confused कि गवर्नमेंट के लिए करूँ या गेट दूँ, बिकॉज आई गेट टू नो कि PSU ऑफर होते हैं गेट देने की वजह से भी. एंड दैट टाइम आई सॉ वीडियो ऑफ मैम, आई थिंक दैट वाज योर फर्स्ट वीडियो. And to be very honest, I am not that much interested in the practicing architecture. And when I watch your video, then my thoughts and your thoughts were so much overlapping. I thought कि ये मैम मुझे समझ सकती है properly. Even मतलब मुझे याद है मैंने आपको बहुत बड़ा एक मैसेज भी लिख के भेजा था वो वीडियो के नीचे. कमेंट किया था यार. हाँ. I remember. तो फिर मैंने आपको कॉल किया and then I got a direction कि I can give GATE and by that I will be able to like go for M plan in IITs. तो वो एक था. तुम्हारे साथ साथ मुझे भी नॉस्टैल्जिया हो रहा है. मुझे ऐसे वो सारे वो ना मुझे पूरा याद आ रहा है, मुझे पूरा कॉन्वर्सेशन याद है, मुझे वो टाइम याद आ रहा है. बिकॉज वी वर ऑल्सो स्टार्टिंग एट दैट टाइम एंड you commented and I also replied onto something, then we connected over call or something. So yes, so क्योंकि नेक्स्ट थिंग नहीं तो मैं बहुत जल्दी सेशन के अंदर ही क्या है मैं एकदम ऐसे इमोशनल टाइप हो जाऊंगी. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू कंट्रोल माय इमोशंस एंड उसके लिए आई विल मूव क्विक ऑन टू द क्वेश्चंस, राइट? एंड the next thing that I want to know is, so when you joined GATE in July. 28th June was the first date. Yes. 28th June was the first date. I clearly remember our first batch started on 28th June. So before that also, were you preparing or doing self-study? Yeah. So as I mentioned earlier, I was doing for MPSC exam. So I prepared for that exam for 2 months. And then for 1 month I prepared by self study. So मैंने YouTube पे कुछ मतलब वीडियोस वगैरह देखे, but the main thing which was lagging is self discipline. सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत कमी थी मेरे इसमें. एंड द सेकंड थिंग वाज मेरे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे. आई एम फ्रॉम वेरी बेसिक कॉलेज, लाइक मेरे अमरावती में सिर्फ एक ही कॉलेज है आर्किटेक्चर का. तो बिकॉज ऑफ दैट आई थॉट कि अगर मैं कुछ एकेडमी ज्वाइन करूंगी तो मैं मतलब स्टिक कर पाऊंगी एक शेड्यूल को. एंड इट विल बी ग्रेट कि मैं अपना स्ट्रेस भी मैनेज कर पाऊंगी जो भी मेरी एंजाइटी है. सो दैट्स व्हाई लाइक व्हेन आई टॉक टू यू आई वाज लाइक वेरी रिलीफ दैट आई कैन गो विद दिस एकेडमी. So basically, when you joined or when you started your preparation, before that you have like done एक महीना या कुछ तुमने उसके लिए सेल्फ स्टडी किया था. और मेन प्रॉब्लम या मेन इशू दैट यू वांटेड टू सॉल्व वाज द टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स. व्हाट आई अंडरस्टैंड, राइट? Cool. So like when you joined, so that must be your initial plan कि मुझे किस तरीके से prepare करना है. What was in your mind कि GATE तो easy exam है निकाल लूंगी, या फिर क्या thought process क्या था उस टाइम पे regarding GATE और regarding yourself? क्योंकि when we enter into something, so we think about it, right? कि how I'm going to navigate my journey into this complete, because this is a journey. मैं पहले भी यही बोलती थी कि this is a complete journey, a different kind of journey that we need to do, and we need to enjoy this journey. Then only we'll be able to be on this. So what was your initial thought process when you joined GATE, when you joined classes, right? कि एकदम निकालना है, एकदम उखाड़ देंगे, IIT निकाल लेंगे. स्टार्टिंग से was it the same और क्या चीज थी, मतलब what was it? अच्छा,
तो मैं पास आउट हूँ 21 के। उसके बाद मैंने एक साल पूरा मतलब आई हैव डिड अ जॉब फॉर 1 ईयर, एंड देन इट वाज अ बिग रिस्क फॉर मी टू लेफ्ट अ जॉब। तो उसके बाद लाइक मेरा ऐसा था कि मैंने रिस्क लिया है, आई नीड टू क्लियर इट इन द वन गो। So, but I know somewhere, like, to be very honest, or I don't brag, but I was kind of bright student in my academics. So I know if I get a time, if I get a good time, I can manage it. Even I was having, as I told earlier, I was having did my self study. तब भी मेरे पास पेपर पैटर्न्स वगैरह थे, मैंने पेपर्स देखे हुए थे, तो मुझे ऐसा ही लगता था कि अगर मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँ, एक साल दूँ, तो मेरा हो जाएगा। बट या देयर वाज एट द सेम टाइम कि मुझ पे बहुत स्ट्रेस था, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ा हुआ था मेरा। And you can see your classmates are doing good, they, like in the practice. So yeah. So based on this, now my question would be majorly on preparation. So when you started, like for example on 28th June we started our classes, I remember that, right? So uske baad mein, when you made your timetable, because I know internally you work on timetables, you work on your to-dos and all of that. So when you made your timetable, how was your day looked like in July? Because I know it would be something different from October or July, so there must be some changes in the timetable. But what was the timetable initially in the starting in July month? So how your day looked like at that time? Okay. So starting में I know like I remember like हमारे alternate classes होते थे शायद, हैं? तो फिर मैं तब मेरा एक ही गोल रहता था कि कल जो पढ़ाया है वो नेक्स्ट क्लास आने से पहले आई नीड टू मेक नोट्स ऑफ दैट। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन माय वन थिंग दैट आई वाज वेरी क्लियर अबाउट कि मुझे डीप स्टडी करनी है, मुझे सिर्फ सुपरफिशियली नहीं पढ़ना रहता था। मतलब ये मेरा स्टडी का स्टाइल था। अगर मुझे कुछ चीज समझी भी नहीं है, मतलब मैं नोट्स बनाती थी हर क्लास होने के बाद, और अगर मुझे कुछ चीज क्लियर नहीं हुई तो मैं वो नोट्स नहीं बनाती थी जब तक मैं किसी टीचर से, जो भी रिगार्डिंग टीचर है, उनसे क्लियर ना करूँ। तो स्टार्टिंग में लाइक 1 to 2 months दिस वाज माय शेड्यूल कि जो भी पढ़ा है वो दूसरे क्लास से पहले क्लियर करना है। देन आफ्टर आई लाइक रिमेम्बर कि मुझे बहुत स्ट्रेस आने लगा था अक्टूबर नवंबर में। आई रिमेम्बर कि मैं आपसे बोल भी रही थी कि क्या मैम हम अल्टरनेट को हर एक डे क्लास नहीं कर सकते, क्या ऐसी चीजें थी। बट या देन आफ्टर लाइक मेरा ऐसा कुछ प्रॉपर शेड्यूल नहीं था कभी भी। मैं रात में पढ़ती थी, लेकिन मेरे टारगेट्स होते थे। शेड्यूल नहीं था लेकिन टारगेट्स होते थे, मंथली भी टारगेट रहते थे, डेली भी टारगेट रहते थे, ये करना है। तो मैंने बहुत सारी चीजें लाइक ट्राई एंड एरर बेसिस पे की। मैंने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन किया, कभी जब घर पे मन लगता था तब घर पे पढ़ाई की थी मैंने। आई हैव डन अ लॉट ऑफ लाइक ट्राई एंड एरर बेस्ड थिंग्स। सो यस, लेकिन मेरा एक चीज थी कि जो मैंने हमेशा रखी थी कि मुझे हर रोज 6 से 7 घंटा पढ़ना है, और मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल हो इतना कि मुझे स्ट्रेस ना आए। मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज थी कि अगर मुझे स्ट्रेस आए तो मैं पढ़ नहीं पाती थी। तो from July only you started like preparing 6 to 7 hours? No. From July to maybe for 2 months I was preparing 4 to 5. Then I like मैंने बाद में वो फिर 6 to 7 किया। और जब लास्ट के 2 मंथ्स थे, जनवरी फरवरी, तब तो मैं पूरा दिन पढ़ती थी, क्योंकि मेरी बहुत रिवीजन बाकी थी और मैं बहुत स्ट्रेस में थी। I remember your library वाला time जब तुमने library join किया था, and you used to take classes from library also. तो वैसे धीरे धीरे बात करती थी, मैं बोल नहीं सकती मैं library में बैठी हूँ। I remember that you used to do that on class, right? So 4 to 5 hours, I guess students you need to take a note of this. So in the initially like at least 4 to 5 hours you need to give, और जैसे मैं बोलती रहती हूँ कि in the coming months that you are going to do in October November, so you have to increase your timing for that, right? Again मैम I wanted to add one thing कि मैंने एक बात चीज नोटिस करी थी। अगर जैसे हर एक के जो बीआर का जो लेवल रहता है वो अलग अलग रहता है। जैसे मैंने बताया माय कॉलेज वाज नॉट दैट गुड कॉलेज, सो मेरे बहुत कंसेप्ट्स नहीं थे इतने अच्छे, तो मुझे ज्यादा टाइम लगा। शायद हो सकता है किसी को कम लगे। तो मेरा ऐसा है कि यू शुड लाइक खुद को पहले देखो कि तुम्हें कितना कितना जरूरी है, उसके हिसाब से तुम्हें करना चाहिए। This is very important point. First you need to be self-aware where you are at this point of time. तो ये जो रुचिका तुम बोल रहे हो कि खुद को देखो कि किसमें क्या है, is there any anything you would suggest them how can they analyze themselves कि अभी आज की डेट में उनको कितना
पता है या कितना उनका प्रिपरेशन लेवल है? इज देयर एनीथिंग, मतलब हर किसी को नहीं पता होता कि व्हाट आर दोज क्वेश्चंस, व्हाट इज दैट लिस्ट, कि उनको कम से कम इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। मतलब मुझे एक एग्जांपल याद है इससे। आपने एप्टीट्यूड बहुत मतलब जब चालू किया था तो ऐसा प्लान था कि लास्ट में एप्टीट्यूड लेना है, तो आई वाज लाइक मैं फ्लो के साथ चल रही थी, लास्ट में लेना है। बट व्हेन आई स्टार्टेड एप्टीट्यूड दैट टाइम एवरीवन वाज गिविंग आंसर्स एंड आई नो आई वाज लाइक बहुत लैग कर रही थी मैं, तो मुझे बहुत ये हो गया था कि मैं कैसे करूंगी, बिकॉज मेरा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा था। तो देन आई गॉट टू नो कि मेरे बेसिक्स नहीं है क्लियर। सो आई फाइंड अगर अभी क्लासेस चल रहे होंगे तो तभी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स में हम हैं। जैसे स्ट्रक्चर में भी कोई कोई नहीं रहता है, स्ट्रक्चर के भी किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते, तो while classes we can get that thing. I guess to add on to here, तो फॉर दो स्टूडेंट्स मतलब पता होता है कि हम न्यूमेरिकल में स्ट्रांग है या नहीं है, हम थ्योरी में स्ट्रांग है या नहीं है। सो अगर हम थ्योरी में स्ट्रांग है तो हमको अभी एट दिस पॉइंट जो है न्यूमेरिकल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, राइट, रादर देन मगिंग अप थिंग्स अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि फ्रॉम योर एक्सपीरियंस रुचिका, कैन यू टेल मी कि मुझे याद है तुम थ्योरी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी और तुम एक दिन में मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मैंने यूनेस्को की सारी हेरिटेज साइट्स याद कर ली है, और मुझे ऐसा लगता था कि याद कर ली सारी साइट्स एक दिन में याद हो गई है। तो दैट वाज अमेजिंग, मतलब दैट वाज योर स्किल सेट दैट यू हैव, राइट। एंड ऑन द अदर साइड, लाइक इफ आई सी माई सेल्फ, तो मैं इतना थ्योरी याद नहीं कर सकती। सो देर आर लाइक टू एक्सट्रीम टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग हियर, वन हु इज गुड विद न्यूमेरिकल्स बट थ्योरी में इतना अच्छा नहीं है। यू वर गुड विद न्यूमेरिकल्स ऑल्सो एंड यू वर गुड विद थ्योरी ऑल्सो, राइट। सो इन दैट केस, लाइक अभी जैसे, इज दिस द राइट टाइम टू मग अप लॉट ऑफ थिंग्स, or the time will come, you know, on the basis of like your journey? What would you suggest, क्योंकि you used to learn a lot of things? I think I have made mistake about this thing, like जो भी जैसे रहते हैं कुछ चीजें जो प्योरली याद करनी है, आर्किटेक्ट्स, उनके बिल्डिंग्स एंड उनके बुक्स एंड देन यूनेस्को साइट्स, रामासर साइट्स, तो आई फाइंड कि if you gonna mug up that thing now, then that is kind of time waste, I believe now, बिकॉज जब हमें मतलब फेब्रुवरी तब आते हैं तब हम सब कुछ भूल जाते हैं। आई अंडरस्टैंड कि मैंने ये मतलब पहले लिखे हुए थे सारे, लेकिन जब टाइम आया तब मैं भूल गई थी। तो ये जो चीजें छोटी छोटी ये फेब में हम कर सकते हैं, सॉरी जनवरी में जब हमारा ये रहता है तब कर सकते हैं, और तब वो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आएगा उसका, राइट, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा होता है उस टाइम पे, चीजें याद जल्दी हो जाती हैं। सो एज यू मेंशन कि लाइक जुलाई अगस्त के आसपास योर स्ट्रैटेजी वाज कि जो भी पढ़ाया है आज क्लास में वो मेरा रिवाइज होना चाहिए, उसके नोट्स बन जाने चाहिए, राइट। ऑन दिस पॉइंट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर प्रिपरेशन जर्नी कि व्हाट वाज द रेलेवेंस ऑफ नोट्स फॉर यू, कितना इम्पोर्टेंस रहा नोट्स का तुम्हारे लिए? तो मेरी पहले से ही ऐसी मतलब पढ़ाई करते हुए मेरी आदत है कि आई नीड टू मेक नोट्स। इट इज नॉट बिकॉज I am not sure that I will read that notes after, it is not about that, but मैं जब भी नोट्स खुद लिखती हूँ तो वो मेरे लिए प्रूफ रहता है कि मैंने ये पढ़ा है, मुझे वो एक कॉन्फिडेंस आता है। और मैंने एक हैबिट बनाई थी कि जब तक मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो मैं नोट्स वो मतलब नहीं लिखूंगी। जब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी मैं सर से तभी बात करके वो नोट्स लिखूंगी। तो पहले तो मेरे पहले बहुत लंबे लंबे नोट्स बनते थे। जब मैं मतलब अभी जैसे मैंने कल ही क्लास किया और मैं अभी नोट्स बता रही हूँ तो मैं पूरा लिख लूंगी पूरा जो भी है, लेकिन जैसे जैसे मैं रिवाइज करती गई तो मेरे और छोटे और छोटे और छोटे बनते गए। तो उससे कैसा हुआ, मुझे पहली बात तो कॉन्फिडेंस बहुत आया, लाइक आई नो कि आई नीड टू ओनली रीड दिस मच पेपर्स। जो भी नोट्स है उतना पूरा गो थ्रू नहीं करना पड़ा। रिविजन का भी टाइम, लाइक आई यूज्ड टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ रिविजन। सो and the most thing I would like to mention that give me like self confidence boost up कि ज्यादा पढ़ना नहीं है। तो तुम क्लास के साथ नोट्स नहीं बनाती थी, रनिंग नोट्स? क्लास के साथ तो मैम बनाती थी, क्योंकि मेरा बहुत ध्यान इधर उधर भटकता था। आपने भी बताया था स्टार्टिंग में नहीं बनाती थी, बिकॉज मुझे बहुत वो दोनों चीजें ये करने में मुझे तकलीफ होती थी कि मैं सुनूं या लिखूं। बट मैंने वो ट्राई किया और वो हो गया। फिर वो मतलब एक लिंकअप हो जाता था कि करना है। मुझे अभी भी याद है हिस्ट्री के नोट्स मैंने वैसे ही मतलब हिस्ट्री बहुत लास्ट में पढ़ा था और मेरे पास नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं था, तो वो जो रनिंग नोट्स थे वही मैंने यूज किए थे वो टाइम पे।
मेक सेंस। तो तुमने सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हुए थे, तुम्हारे पास सारे सब्जेक्ट के नोट्स थे? हाँ हाँ, सारे ओके, सब्जेक्ट के थे ऑलमोस्ट। परफेक्ट। सो एक और चीज मुझे याद है जो तुम्हारी, कि यू यूज टू स्टडी एनबीसी ऑल्सो। हाँ। सो राइट, तुमने एनबीसी का, मुझे याद है हमने अच्छा खासा डिस्कशन भी किया है इस पे। सो एनबीसी के अंदर माय टू क्वेश्चंस आर, वन इज व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एनबीसी, ठीक है, एंड द सेकंड इज हाउ टू गो थ्रू एनबीसी, हाउ यू वेंट थ्रू एनबीसी, हाउ यू स्टडीड एनबीसी। ओके, सो मुझे याद है एनबीसी वाज लाइक बिग स्टोन फॉर मी कि इतना, क्योंकि उसमें बहुत फैक्चुअल डेटा है। मुझे उसका बहुत स्ट्रेस होता था। मैं आपसे हमेशा पूछती थी इसका क्या करना है मैम, और मुझे हमेशा जब भी मैं पेपर पैटर्न दिखती थी मुझे उसमें क्वेश्चंस दिखते थे, और इट वाज लाइक कि ये मतलब एनबीसी से क्वेश्चन आने ही है तो करना ही है, वो हम ये नहीं कर सकते थे। तो एनबीसी के लिए तो मैंने एक मतलब डिफिनेशंस जो भी है वो डिफिनेशंस पे मैंने ये किया कि वो डिफिनेशन करनी है। Like I didn't go very deep in the NBC. I was studying superficially for NBC because NBC की definitions है, and the second part which I go through is फायर का जो पार्ट है वो। तो एक तो क्लासेस करे थे मैम, उसमें बहुत ही जो भी सर ने पढ़ाया था बहुत ही छोटे छोटे इसमें उन्होंने लिख के दिया था, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर करे थे उन्होंने। एंड द सेकेंड पॉइंट कि कब पढ़ना चाहिए एनबीसी के लिए, तो आई बिलीव इट इज ऑल फैक्चुअल डेटा, न्यूमेरिक डेटा। तो वो याद करने के लिए हमें जब मतलब जनवरी में या फिर दिसंबर में मेरे हिसाब से वो टाइम अच्छा है, क्योंकि तुम ये फैक्चुअल डेटा न्यूमेरिकल डेटा बहुत पहले याद करोगे तो फिर वो तब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा। Makes sense. So apart from NBC, like NBC was one of the major chunk that you needed to cover, but उसके अलावा ऐसे कौन से टॉपिक और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे that you found very difficult and how did you tackle them? क्या उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाई कि इसको कैसे पढ़ना है मुझे या फिर कैसे ओवरकम करना है? So how you, what were those subjects and what you did to, you know, study all that? सो आई रिमेम्बर स्ट्रक्चर, वो सबसे आपको पता होगा जो भी हम वो बारे में बहुत कुछ मतलब डिस्कशन हुआ है अपना। तो स्ट्रक्चर मेरे लिए बहुत ये था, मतलब कॉलेज में मैं ठीक ठाक थी स्ट्रक्चर में जब, लेकिन मैं जब यहाँ पे आई और मैंने जो लेवल के क्वेश्चंस देखे तो एक तो मेरा गैप था कॉलेज से और इसके बीच में, तो वो थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहे थे वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह। तो वो उसके लिए फिर मुझे समझ नहीं आते थे कॉन्सेप्ट्स, तो मैंने वही किया कि मुझे जब तक समझ में नहीं आता था मैंने बहुत उसको मतलब हर किसी का मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट दिमाग खाया है। मुझे अभी भी याद है मैं सर को वो पॉइंट्स वाइज क्वेश्चन भेजती थी, सर इसका क्या है इसका क्या है। और स्ट्रक्चर के लिए मतलब मेरा कैसा भी कभी भी ऐसे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते हैं ना मुझे वो इमेजिन होने चाहिए। स्ट्रक्चर का ऐसा है कि अगर बेंडिंग मूवमेंट है तो वो कैसे हो रही है क्या हो रहा है उसमें, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं सर को पूछती थी। इवन आई रिमेम्बर कि सर ने जब हमारा लास्ट में कन्वर्सेशन हुआ था तब भी सर ने मुझे बोला था कि रुचिका इतनी क्वेश्चंस पूछती थी कि मुझे 2 बार सोच के बताना पड़ता था कि ये क्या पूछती। तो या स्ट्रक्चर वॉज द वन थिंग एंड आई हैव गिवन 100% टू स्ट्रक्चर। मैंने सर के क्लासेस भी किए, उसके बाद में जो भी कुछ जैसे एनिमेटेड वीडियोस रहते थे जिससे मैं वो कॉन्सेप्ट समझ पाती थी वो भी किए हैं। अगर मेरे कुछ पहले के कॉलेज के नोट्स है वो भी मैंने पढ़े हैं, तब चैट जीपीटी भी था उससे भी पढ़ा है। तो वो स्पेशली स्ट्रक्चर के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मतलब चैलेंज था मेरे लिए। तो मेहनत के अंदर मतलब यू यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस और नोट्स या सारे नोट्स वगैरह करके कोलेट करके तुमने, और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस भी उतनी की? हाँ, मतलब नोट्स भी प्रॉपर बनाए थे, और जो भी मेरे अच्छा। पास ना एक बुक ही था मतलब पूरा पेपर्स का, लगभग 30 ईयर्स के पेपर्स थे उसमें। मैं हमेशा देखती थी कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस आए हैं और टॉपिक वाइज उसको डिवाइड करके वो सॉल्व करती थी। मेक सेंस। सो रुचिका, मुझे थोड़ा सा अब यहाँ पे ऐसे हेल्प करो कि लेट्स इमेजिन कि दिस इज मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर, और तुम्हारा बैक अक्टूबर और नवंबर। सो हाउ यू डिवाइडेड योर टास्क्स, because I remember that time classes were also going on, right? And there were a lot of stuff also that you, और उस टाइम पे मेरे ख्याल से 80% समथिंग सिलेबस तुम्हारा हो चुका था, राइट? सो उन सबको, और अक्टूबर नवंबर ऐसा टाइम होता है जब लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, राइट? सो उस टाइम पे जैसे तुमने बताया कि मैं अपने कुछ टास्क रखती थी, कुछ गोल रखती थी, तो उन गोल्स को तुमने अपने स्ट्रेंथ वीकनेस इस तरीके से किस तरीके से डिवाइड किया हुआ था? किस बेसिस पे वो गोल्स बनते थे? किस बेसिस पे तुम्हारे टारगेट सेट होते थे? अच्छा,
तो मतलब मेरा ऐसा था कि एग्जाम से एक महीना पहले मुझे बफर जोन चाहिए, मतलब तब तक मेरा सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। दैट वाज माय मेन थिंग। तो मैंने पहले मंथली किए कि मेरे इतने सब्जेक्ट्स हैं, मंथली जो भी बनते थे इतने सब्जेक्ट्स में मंथली, और फिर मंथली को भी मैंने वीक वाइज और डे वाइज ये किया था। और मतलब मुझे तो बस यही है आदत याद था कि मैं जब भी बहुत स्ट्रेस होती थी मुझे एक चीज ऐसे लगती है कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मेरा कभी खुद का शेड्यूल नहीं था प्रॉपर। अगर मेरा खुद का प्रॉपर शेड्यूल रहता था दिन का, तो मुझे अपना स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत आसानी रहती थी। दिन का मेरा शेड्यूल नहीं रहता, उसके वजह से क्या होता था, एवरी टाइम आई वॉज इन एंजाइटी, आई वॉज नॉट गिविंग टाइम, लाइक स्टडी से छोड़कर मैं किसी भी चीज को टाइम नहीं दे पा रही थी, और उससे मुझे बहुत एंजाइटी होती थी। सो यू आर आस्किंग अबाउट अक्टूबर एंड हाँ, नवंबर। मतलब इन जनरली अक्टूबर नवंबर या फिर पहले भी, कि किस तरीके से मतलब टास्क वगैरह कैसे डिवाइड करते थे तुम? क्योंकि उससे पहले तो आई रिमेम्बर जैसे तुमने बताया कि जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, यू यूज्ड टू मेक नोट्स फॉर द क्लासेस, और तुम्हारा तो सितंबर अक्टूबर के पास में एंजाइटी लेवल जैसे बढ़ना ज्यादा हो हाँ जाता है। हाँ। तो और तो इतना सारा 80% सिलेबस भी है जिसको तुमको रिवाइज हम्म, भी करना है, साथ में नए सब्जेक्ट्स भी हो रहे हैं तो उसको, आई रियली टू गेट इट। तो मैंने खुद के हिसाब से फिर वो शेड्यूल बनाया। टास्क वगैरह और डिवाइड किए कि हाँ मल्टीपल चीजों को हम किस तरीके से ऐड कर हाँ, सकते हैं और अपने मेरा उसमें। खुद का फोकस यही था कि मेरा जो खुद का टाइम टेबल है वो अच्छे से ये करे। ये मेरा खुद का मेन था, मैंने उसको प्रायोरिटाइज किया। Got it. So I believe, like as I say this also, कि along with classes, self study is very important. हम्म Right, what you are studying, because in class teachers can give you notes, give you direction, they can help you solving your doubt, but in the end you have to sit with yourself. You need to see your strength and weakness, where you are doing good, where you are lacking, and based on that I believe, like all the tasks that are coming, the goals that are coming, this will come from that particular thing कि मुझे अपना हम्म क्या achieve करना है और final हम्म goal क्या है. Makes sense. So tell me more about मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कितना हम्म फ्रीक्वेंसी पे दिया, कितना क्या हम्म। क्या चीजें ऐड करके किया, एवरीथिंग? तो माय मेन मिस्टेक वाज कि मैंने पेपर सॉल्व करना बहुत लेट स्टार्ट किया था। मुझे याद है मैंने जब पहला पेपर स्टार्ट किया था, तब मुझे मेरे मार्क्स कुछ 35 थे शायद। मैं बहुत स्ट्रेस में चली गई थी, क्योंकि यू हैव टोल्ड मी दैट यू स्कोर्ड समथिंग नियर बाय आई थिंक 60 और 68 और समथिंग टू गेट दैट रैंक। सो आई वाज वेरी लाइक टू मच। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पढ़ाया है, लाइक हम जो पढ़ते हैं वो थोड़ा अलग रहता है, और जो पेपर बनता है वो थोड़ा अलग रहते हैं, वो क्वेश्चन थोड़े अलग रहते हैं। तो ये जो गैप है ये हमें फिल करने के लिए पेपर्स बहुत पहले से मतलब चालू करना चाहिए। एक तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो देखना पड़ता है। सेकंड, उसका टाइम का भी बहुत इशू होता है। और बहुत सिली मिस्टेक हो जाते हैं जब मैं टाइम लगा के हम पेपर करते तब। तो पेपर पहले ही चालू कर देना चाहिए, आई थॉट। मॉक टेस्ट यू मीन तो ना? या मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तुम्हारे टाइम पे हाँ मुझे लगता है मॉक टेस्ट बहुत टफ वाले थे, या, और मैंने मिक्स बहुत ऑफ लास्ट स्टार्ट करते, बिकॉज मिक्स ऑफ आई, मॉक टेस्ट थे. हाँ, बिकॉज आई रिमेम्बर आई यूज टू स्केयर टू गिव मॉक टेस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फेस द मार्क्स विच आई एम गेटिंग आफ्टर द मॉक टेस्ट। ये मैंने कई जनों से सुना है, दैट्स व्हाई यू नो इन क्लास आल्सो, लाइक लास्ट ईयर आल्सो आई वाज फोकसिंग ऑन दिस थिंग, और अभी भी, कि एक बार करके जस्ट सी वेयर यू आर लैकिंग. राइट, आई गेस हमारा भी यही डिस्कशन होता था कि एक बार दो, फिर उसके बाद वापस दो कि हमने उसमें क्या किया और क्या नहीं किया. राइट, तो लाइक आई थिंक यू डिड दैट, फॉलोड दैट, या कुछ फिर या प्रैक्टिस कहाँ से करते थे? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट या हाँ प्रैक्टिस टेस्ट, हाँ। क्वेश्चंस भी तो प्रैक्टिस कहाँ से? तो मैं जब भी मॉक टेस्ट देती थी, मेरे पास जैसे मैंने बोला एक ये था, बुक था, उसमें सारे क्वेश्चंस थे 30 इयर्स के। तो मैं जब अपने एरिया एकेडमी का मॉक टेस्ट देती थी तो मैं उसका एनालिसिस करती थी प्रॉपर, क्योंकि पहले तो मुझे वो समझ में ही नहीं आता था कि मैंने मतलब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो इतने कम मार्क्स क्यों आए। तो मैं उसको लेके बैठती थी, मैं उसको कैटेगराइज करती थी कि मैंने कुछ सिली मिस्टेक किया है, मैंने न्यूमेरिकल में सिली मिस्टेक किया है, या तो ये टॉपिक मुझे आता है लेकिन याद नहीं आ रहा था, या फिर ये टॉपिक मुझे पता ही नहीं था,
ये सारी चीजें मैं करती थी। अगर मुझे टॉपिक नहीं पता रहता था तो वो मैं जाके देखती थी ये क्या टॉपिक है क्या है। और उसमें भी एक ऐसी चीज थी, क्योंकि मैंने बहुत लास्ट में मॉक टेस्ट देना चालू किया था, तो मैं एक दिमाग में रखती थी कि अगर ये टॉपिक नया है तो ये मेरे लिए पढ़ना, मतलब इसमें मैं टाइम इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि वो हमें पता नहीं वो कि आएंगे कि नहीं आएंगे। लाइक 2-3 क्वेश्चन थे मैम, आपको आप भी बोल रहे थे कि वो एमटेक लेवल के क्वेश्चन है, तो वो मतलब मैं उसमें उतना डीप जाने के लिए जरूरत है, टाइम इन्वेस्ट करने का जरूरत है या नहीं है। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते थे कि वो पक्के आने ही वाले हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करती थी। मेरे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे तब पता चलता था कि कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उसकी वजह से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो वो भी मैं फिर करती थी। अगेन मॉक टेस्ट के अलावा भी मेरे पास जो पेपर्स थे वो मैं देखती थी हमेशा। previous year questions. Yeah. Very nice. So as you are saying कि analysis करती थी तुम हर बार, तो that analysis helped you in improving your marks? Yes. तो वो एनालिसिस से क्या हुआ ना, वो मेरी जो गलतियां थी वो रिपीट नहीं होती थी। मुझे समझ में आ जाता था कि क्या कैसा है। इवन न्यूमेरिकल्स में मैं कहाँ पे क्या करती हूँ, तो वो चीजें मुझे समझ में आ जाती थी। कुछ टॉपिक्स जो मेरे क्लियर मतलब मैंने पढ़े लेकिन मुझे तब याद नहीं आ रहे थे, तो वो भी मेरा रिवाइज हो जाता था। आई अंडरस्टैंड स्टार्टिंग में ये एनालिसिस करने के लिए बहुत टाइम लगता है। लाइक एक पेपर तुम 3 घंटा लाइक 2 घंटे लेके बैठते हो, लेकिन वो एनालिसिस उससे डबल होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे मॉक टेस्ट और देते जाओगे तो वो एनालिसिस का टाइम भी शॉर्टन हो जाएगा और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। Very nice. So I remember this particular की अपना पूरा लिस्ट बनाना, उनको कैटेगराइज करो 4 उसमें, एंड लास्ट ईयर ऑल्सो आई गेव इट टू द स्टूडेंट्स एंड इट एक्चुअली हेल्प देम इन इंक्रीजिंग 20 to 25 marks. So that kind of change I have seen, and this comes with consistency also, and analysis is very important. I heavily focus on that. हमें जब अपने मार्क्स बढ़ते दिखते हैं हर पेपर में, लाइक कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप होता है कि नहीं ये ऐसा कर देंगे तो ये होगा। तो रुचिका अब आते हैं थोड़े से दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। सो आई रिमेम्बर लाइक, और there was a lot of time when you feel low or you feel like pata nahi kya hoga, or sometimes overwhelmed also in this particular journey because lot of things are at stake, right? For example, you left your job and then you gave your 1 year, you were preparing for this, and sometimes sometimes you feel like I don't know whether I made the right decision or not, right? And then there were days like that. I remember that very clearly. So like how you overcame that, right? Because those days are normal and it will come in the complete journey. Right now also we have like 7-8 months left, और इसके अंदर भी बहुत से बच्चों के there will be a cycle that will come again and again. कभी mock test में गंदे marks आए हैं, वो देख के बुरा लगेगा, सारी चीजें. So how you handle that? Is there anything you want to tell those students कि तुमको क्या करना चाहिए और उससे बाहर निकलना कैसे चाहिए या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात, मुझे याद है मैं बहुत कंपेयर करती थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे टेलीग्राम पे, आई यूज्ड टू आस्क देम कि कितना पढ़ा है, तुम्हारे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं। एंड यू नेवर नो कि कौन क्या बोल रहा है, कोई शायद झूठ भी बोल सकता है, यू नेवर नो। तो वो कंपैरिजन से मुझे बहुत एंजाइटी होती थी। देन द सेकेंड थिंग विच आई मेंशन कि मेरा शेड्यूल फिक्स नहीं था, मतलब गोल फिक्स थे लेकिन मेरा प्रॉपर शेड्यूल नहीं था। उसकी वजह से मैं हर टाइम एंजाइटी में रहती थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो ये 2 चीजें थी मेरे लिए। तो अगर मुझे ऐसा लगता है जब भी हमें कभी बहुत स्ट्रेस आ रहा है ना, आपका अगर फिक्स मतलब आपके टारगेट्स ये है, डिसाइड है, तो सिर्फ अपने जो टारगेट है उस पर फोकस करना चाहिए। जब हम थोड़ा सा काम भी करते हैं ना तो हमें एक मतलब क्या बोलते हैं उसको मोमेंटम आ जाता है कि नहीं हम कर लेंगे। माई मेन थिंग वॉज कि व्हेन आई वॉज वेरी लाइक मैं बहुत एंजाइटी में रहती थी तो मैं पढ़ना छोड़ देती थी, मैं सिर्फ सोचती रहती थी। तो फिर जब मैं थोड़ा काम करती थी, फिर मुझे कुछ दिखता था कि अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या फिर मैं कर रही हूँ, तब मुझे मतलब वो मैं फेस से निकलती थी। तो whenever you are feeling very anxiety or very stressed, that time only focus on your goals, daily goals. If you like जब तुम वो ये करोगे सब, तो तुम्हें भी एक सेटिस्फेक्शन आएगा। टू डू लिस्ट बनाए, दिन भर की टू डू लिस्ट अगर आपने काम टिक करे तब भी हमें एक रात में रहता है कि नहीं हम कर रहे हैं, हम वी आर ऑन आवर ट्रैक। Right. So what was that one thing that kept you going? एक internal motivation आता है, एक internal confidence आता है कि भाई वो कुछ एक वो factor आता है
So what was that, that thing that kept you going all over, like, to do this journey? एक तो मेरा था, मैंने बहुत रिस्क लिया था, मुझे वो वन गो में ही करना था, बिकॉज इन माई फैमिली दे डोंट नो मच अबाउट गेट एग्जाम. सो दे वर लाइक नोन अबाउट द नीट एग्जाम एंड वगैरह, कि नीट एग्जाम में 2-3 साल लगते हैं, बट दे वर लाइक कि गेट एग्जाम तो पता नहीं भाई, एक साल में निकलता होगा शायद. तो एक तो वो था. एंड द सेकेंड थिंग कि मैंने बहुत मेहनत दी थी, मतलब एक मैंने मुझे भी याद है, मैं हर समय, मुझे जब भी गेट का मैं सोचती हूँ तो मुझे, मैं पढ़ रही हूँ यही याद आता है हमेशा. तो वो एक था कि मैं अगर इतना पढ़ रही हूँ तो मुझे वो निकालना ही है. और एक तो ऐसी चीज है कि मैं बहुत डीप स्टडी करती थी, उसके वजह से ना वो ऐसा, मतलब मेरे लिए स्ट्रेस ऐसी चीज नहीं थी कि मतलब मुझे बहुत मजा आता था. मैंने आपको तब भी बोला था कि मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है, मैं बहुत डीप पढ़ती हूँ, इंटरेस्ट बना रहता है वो चीज से. तो यार डीप पढ़ने से मेरा इंटरेस्ट बना रहा. और या दैट इज इट. Very nice. So, I think this gate journey, these months, when you are preparing and you are giving your 100%. So this kind of change something inside you, right? Anything happened with you that you felt like ki I was a different person back then. After achieving this, there were few things that I learned, or something changed in me or something. मैं जब, मतलब आई रिमेम्बर माई कि मुझे आर्किटेक्चर नहीं करना था, मुझे एमबीबीएस करना था बैक देन. And when I choose architecture, and then like in architecture I was in very average college, तो एक वो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि कुछ ना कुछ फैमिली में बड़ा करना है. Like I don't know to be like पेरेंट्स को प्राउड करने के लिए, या पता नहीं क्या करना है. लेकिन जब मैंने, और वो जो गेट प्रिपरेशन था वो मेरे, मतलब बहुत लो पीरियड था वो मेरे लिए. जब मैंने वो सब कुछ, मतलब प्रिपरेशन किया, और जब मेरा रैंक, मतलब मुझे रैंक दिखा और मेरा आईआईटी बॉम्बे में हुआ, तो अब मुझे फील होता है कि लाइक एवरीवन अराउंड यू बिहेव्स वेरी डिफरेंटली इन योर फैमिली, लाइक यू आर प्राउड फॉर, लाइक मेरी फैमिली सबको अभी जाके बोलती है मेरी बच्ची आईआईटी बॉम्बे में, जो भी चीजें हैं. तो एक तो इससे, मतलब मेरे लिए कॉन्फिडेंस मेरा बहुत बड़ा है कि नहीं, अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी एग्जाम हो, गेट इज लाइक टफेस्ट है, एग्जाम है. तो अभी जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम आती है, या अभी हमारे लिए जो है इंटरव्यूज है, अभी प्लेसमेंट्स है, तो वो उसके लिए ऐसा रहता है कि मैं अगर पढ़ूंगी तो मैं कर पाऊंगी. तो वो एक कॉन्फिडेंस मेरे इसमें आया. और थोड़ा डिसिप्लिन आया है कि रोज पढ़ना है, जो मैंने गेट से सीखा है कुछ चीजें, कि डिसिप्लिन है, तो ये सब चीजें हैं. What do you think? How to build that kind of mindset? I guess in last of our Sunday interaction session, someone asked कि how to build that winning mindset. या तो प्रीतम या बिलाल में से किसी ने पूछा था कि how to build that winning mindset, कि toppers mindset, कि how वो कैसे आता है, वो क्या करने से आता है? मेरे लिए ना मैम ऐसी चीज है, जब मैं किसी चीज के रिजल्ट के बारे में सोच के वो करती हूँ तो वो नहीं मिलेगा. अगर मैं पहले से ही ये सोचती, आई डोंट नो, इट इज वेरी स्ट्रेंज थिंग, अगर मैं ये सोच के एग्जाम प्रिपेयर करती गेट के लिए कि मुझे ये रैंक लाना है, तो मैं वही चीज को लेके, मतलब क्या पता वही चीज लेती ना मैं पढ़ती. लेकिन मैंने हमेशा, जब भी मैं पढ़ाई की है, मैंने ये सोचा है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे समझना चाहिए, मैं वो इंटरेस्ट लेके करती गई. तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे वो बहुत, मैं आपको भी याद होगा कि मैं आपको कितना क्वेश्चंस पूछती थी, इसका क्या है, उसका क्या है. तो वो, मतलब मेरा जर्नी ही बहुत अच्छा मुझे याद है कि था. इवन हिस्ट्री के क्लासेस में भी मैं मैम से कितना बात करती थी. Agree. तो हाँ, तो वो सारी चीजें मुझे, मतलब वो वैसा हुआ. मैंने अभी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे यही रैंक चाहिए या फिर ये चीज चाहिए. तो मैं वो इंटरेस्ट लेके करती गई सारी चीजें. I guess because of this, all of the teachers, they still remember you. They know, अरे हाँ रुचिका कहाँ. तो they were so happy when they heard कि okay, रुचिका का IIT बॉम्बे में हो गया है, and they were very happy about this. And the only thing that they said, उसका तो होना ही था यार. So that was their response on this, because we knew your journey, right? We have seen you in class, and you along with other students also. So एंड मैम, इवन द थिंग विच आई मेंशन नाउ, कि वो मैं इंटरेस्ट लेके पढ़ती थी. एक्चुअली जब हम अभी एमटेक में है, तो हमें जो सेकेंड ईयर रहता है वो पूरा एमटीबी प्रोजेक्ट रहता है.
तो 1 साल पूरा प्रोजेक्ट के लिए देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि तुम्हें वो चीजें पूरे डीपली पढ़नी है। तो वो बहुत हेल्प किया है मतलब मुझे वो चीज अभी जो मैं गेट में जैसे पढ़ती थी। So I think the main thing is enjoy the process, right? Be हम्म। focused on what you are हाँ, learning. Be बिकॉज inquisitive about it बिकॉज इट rather इज अ than वेरी focusing on goal. या बिकॉज इट इज वेरी लॉन्ग लॉन्ग जर्नी है ना 1 साल। लाइक हम 1 साल या 8-9 महीने तो देते ही है। तो हर दिन अगर वैसे ही हम सोचते रहे तो वो नहीं होने वाला है। तो वो True. एंजॉय करते करते, या फिर अगर मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने एक चीज जो मिस की है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ माइंड के लिए भी कुछ मतलब करना चाहिए था मुझे, जो मैंने नहीं किया। शायद मेरी स्ट्रेस लेवल कम रहती थी। कुछ मेडिटेशन या फिर कोई भी हॉबी अगर आपकी हो तो वो हॉबी रोज 10-15 मिनट करे तो वो बहुत बेटर रहेगा। 10-15 मिनट डेली नहीं करो तो कम से कम वीकली कर लो, हाँ हाँ। बट कुछ करना चाहिए, राइट? So, बस last few questions I have, then it will be open for all students to ask questions. Now, my next question is, looking back now, what would you say are the 3 most important things every GATE aspirant must focus on? एक तो है तुम्हें अपना खुद का टारगेट, मंथली टारगेट और गोल, डेली गोल, ये दोनों चीज ये मतलब वेरी मच नीडेड। You can track your whole progress. Then the second thing, wait for me, I have written somewhere. Then the paper solving, mock test करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिलता है कि हम अभी कितने पानी में वो भी दिखते हैं, पेपर पैटर्न भी हमारे क्लियर होते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, रिविजन, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर तुम एक स्टार्टिंग से चालू करोगे तो जब पूरा खत्म होगा तब तक तुम्हें स्टार्टिंग का कुछ याद नहीं रहेगा। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Agree. So, revision, practice, and their monthly goals and daily goals. डेली गोल्स। और सिर्फ बनाने नहीं, उस पर स्टिक रहना बहुत जरूरी है। हाँ, एंड मुझे ऐसा लगता है, मेरी और एक चीज थी कि मुझे ना बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल रखने में बड़ा मजा आता था कि मैं आज के दिन पूरा करूंगी, और फिर वो गोल कंप्लीट नहीं होता था। फिर मैं वो गोल को और ड्रैग करती रहती थी कि कल का ये रह गया। तो थोड़ा रियलिस्टिक गोल बनाओ, थोड़ा अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, टू डू लिस्ट करने में आसान होता है। ये चीज तो मुझे याद है वैसे अच्छे से, ये मुझे याद है, स्ट्रेस वॉइस नोट्स आते थे मेरे पास। रिमेम्बर दैट। राइट, cool. So, okay, my next question is, what, since you have lived that, if you look back now, so what are the mistakes, that students should avoid, or that, they might have made, or you might have made during the journey, that, everyone should avoid those kind of mistakes? एक तो वही है, कंपैरिजन किसी से मत करो। यू शुड हैव योर शेड्यूल, शेड्यूल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और खुद का मतलब यू शुड एनालाइज योर सेल्फ फर्स्ट कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि यू शुड स्टडी कि रात में ही करना है या फिर दिन में ही करना है। खुद के मतलब खुद की जो पढ़ाई है वो खुद के हिसाब से करो, कहाँ पे मन लगता है। और ऐसा हमेशा नहीं रहता, मेरे लिए ऐसी चीज हमेशा नहीं थी कि मैं घर पे पढ़ पा रही थी। हमारा माइंड थोड़े थोड़े दिन के बाद चेंज होता है, जो अपने लिए बेस्ट है वैसे उस हिसाब से करना चाहिए। और हमेशा एक मतलब कोई भी एक गोल मतलब रहना चाहिए कि एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स तो करना ही है, आई बिलीव। प्रोडक्टिव स्टडी। हाँ, प्रोडक्टिव, हाँ। Right. So, Ruchika, if someone is preparing for GATE, right? If students who are in the class also, or if anyone is doing self-study also, right? So, how should they make like most out of it? Most for the students who are studying with us, most of the resources, the mentors, the mentorship that they are getting. So all of that, like how and how well they should, plan it and not just prepare it single-handedly, because we are working as a team here. Yes. I believe communication is very much important in this aspect कि स्टार्टिंग में मैं किसी से ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रही थी। मतलब बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स हम लाइक हमने भी बनाए थे मैम, इफ यू रिमेम्बर। मेरे जो भी फ्रेंड्स थे क्लास में, वो क्लास में जो फ्रेंड्स थे उनके साथ हमने एक ग्रुप बनाया था जिसमें हम हर रोज क्वेश्चंस डालते थे। वो भी हमारे लिए मतलब एक मोटिवेशन की तरह एक्ट होता था कि ये भी करना है।
तो टीचर्स के साथ बात करनी चाहिए जो भी ये है। और पर्सनली मुझे एरिया एकेडमिक की सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैं जब भी मुझे मतलब आपको मेरा पर्सनली पता था कि मेरा माइंडसेट कैसा है, मुझे किस चीज से प्रॉब्लम होती है जो भी है। तो टीचर के साथ कम्युनिकेशन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आसपास के जो भी बच्चे हैं, कंपैरिजन के नहीं, लेकिन मतलब उनसे अगर कुछ उनका अगर कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर है तो हम उनसे पूछ सकते हैं, ऐसी सारी चीजें कर सकते हैं। और जो भी नोट्स है, नोट्स खुद की बनानी चाहिए, वो तो मैं हमेशा ये करूंगी। Awesome, perfect, very nice. So, like in the last, how's your masters going on? गुड गुड। So, तो मेरा मास्टर्स का सीन ऐसा है, आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है मास्टर्स से इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे बहुत पढ़ाई है बिकॉज इट इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, लाइक यू विल गेट अ वेरी लेस थिंग। मुझे तो कुछ अभी भी मैं जब भी सोचती हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखता आर्किटेक्चर का यहाँ पे। मेरे बैच में सिविल के बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस, देन एग्रीकल्चर, ऐसे बहुत से सब लोग मिक्स है। तो इफ टॉकिंग अबाउट माई डिग्री स्पेशली जीएनआर, तो इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्पेशल डेटा और उसका एनालिसिस जो भी करना है, तो इट इज हैविंग ऑल द मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इनटू इट। तो दिस इज अबाउट माय करिकुलम। फर्स्ट सेम में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो अभी थोड़ा करिकुलम थोड़ा रिलैक्स है, सो वी कैन प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग। now you have become a coder. Like on that path. Nice. And how many architecture students are there in your batch? So in my batch there are 2 architects and 2 planners. Oh, nice. Yeah. But I have listened that numbers are like decrease now. Like अभी शायद 1 या 2 ही सीट्स थी अभी ये वाले बैच में। हाँ, हमारे जूनियर्स आएंगे वो। Oh, competition is tough. Yes. Awesome. So, जो पूरा इतना मेहनत की थी गेट करने में, क्रैक करने में, निकालने में, is it all worth it now? हाँ, because whenever I talk to my friends who are like my classmates back then, so I find कि यहाँ से आगे जाने के लिए ना, यहाँ पे बहुत तुम्हें एक प्लेटफॉर्म है, तुम्हारे पास अभी टैग है आईआईटी का। लाइक यहाँ से जो स्टार्टिंग पैकेजेस है वो जो नॉन आईआईटी के बच्चे उनको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पे आने के बाद बहुत इजी यहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो थोड़ा जो पीरियड है ना वो थोड़ा क्रंच हो जाता है कि तुम्हें थोड़े कम टाइम में ज्यादा तुम्हें ये मिलता है, ऐसी चीजें। और यहाँ बाकी जो करिकुलम भी है वो इतना सही है, मतलब जो भी कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट की एक्टिविटीज, बहुत सारे अगर तुम्हें यहाँ पे आके प्रॉपर प्लेसमेंट्स भी नहीं करनी है तब भी बहुत सारी चीजें हैं। पीएचडी कर सकते हो, मेरे अभी जो सीनियर्स है वो पीएचडी कर रहे हैं। कुछ मेरे सीनियर्स नासा में भी है, कुछ सीनियर्स हमें मतलब मेरा जो डिपार्टमेंट है उनका इसरो के साथ कोलैबोरेशन है, तो मेरे ही डिपार्टमेंट में इसरो का भी ये है, सेल है। एंड सम ऑफ माय टीचर्स आर इन द इसरो आल्सो, सो देयर आर अ लॉट ऑफ डायरेक्शंस यू कैन गो विद। अमेजिंग। सो जैसे तुमने प्लेसमेंट का अब नाम छेड़ ही दिया है, तो हाउ आर द प्लेसमेंट्स इन योर ब्रांच? तो इन माय ब्रांच स्पेशली कोर के प्लेसमेंट्स इतने नहीं आते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, एसडी रोल्स तो इसके लिए रहते हैं। तो जैसे मतलब यहाँ पे ऐसा है कि हम फर्स्ट सेम थोड़ा करिकुलम जो भी है कोर्स करिकुलम करते हैं, उसके बाद हम प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी करना चालू कर देते जो भी है। तो लाइक टिल 22, लाइक अभी रिसेशन आ गया है, तब तक बहुत सही थे, अभी भी सही है, अभी थोड़े रिसेशन के बाद कवर अप हो रहे हैं, बट या प्लेसमेंट्स आर क्वाइट गुड। एंड लाइक अभी का जो मेरा लास्ट सीनियर बैच था, तो इवन वी आर हैविंग लाइक अपॉर्चुनिटी। मेरी जो लास्ट बैच की सीनियर थी वो शी वाज फ्रॉम आल्सो आर्किटेक्चर, ओके, शी वाज आर्किटेक्ट एंड शी गॉट जॉब इन द जापान नाउ। Wow. प्लेसमेंट इन द जापान। सो पैकेजेस लाइक एंड डोमेस्टिक पैकेज भी बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब बहुत अच्छे की रेंज क्या है? रेंज मतलब 26 LPA मेरा जो सीनियर है अभी का। जापान का पता नहीं मुझे, वो उनके रुपीज में मैं आपको वो बता दूंगी बाद में, लेकिन like more than 20 also you can easily. Yeah. Very nice, very nice. Like मीडियन जो रहता है वो 15 LPA रहता है, तो या 26 जो हायर मोस्ट
दो हायर। So generally also in IITs, all the companies that are coming, you can sit for those companies. और उसमें ऐसा कुछ restriction थोड़ी है that you are from GNR, you can't sit or. तो उसके लिए जाफ खुलते हैं, अगर जाफ में अपने डिपार्टमेंट का नाम आया है तो फिर वो ये कर सकते हैं। तो वो मतलब जो भी जॉब है, रोल है, सारे डिपार्टमेंट के बच्चे उसमें आ सकते हैं। सो या So thank you, Ruchika. Thank you so much for taking out time and coming here. We wish you all the very best, and hope you get amazing package and amazing job after this. And yes, always welcome. You are always a part of, and we are very proud to have you as our student. And I am particularly very proud to. और class के अंदर तो I used to mention you a lot in Sunday interaction sessions, especially, and all other your group also, if you remember all those students. So everyone, everyone we. Like we teachers also, we discuss on things ki kaun kaise kya karta tha and everything. So it's like today's session is a nostalgic moment for me also, right? Because it's like bringing all the back memories and everything. So it was a great session. Thank you so much, and we would love to have you again on in some session. Hi everyone, I am Parul Sharma, founder of Airy Academy. If you like the content that we share on our YouTube channel, Airy Academy, please do like, share and subscribe. And if you want to join the classes, all the details are given in the description below. Thank you so much.